Good morning, everyone. Today we are going to study the Civics 4th chapter of Class 8, the Union Executive. The executive branch of the government is composed of the President, the Prime Minister, and the Council of Ministers. First of all, we see the President. The President is the head of the state and also the Commander-in-Chief of the Indian Armed Force. According to Article 53 of the Constitution, all executive power are vested in the President. Process of election of President. The President of India is elected by an electoral college consisting of members from both the House of Parliament and the legislative assemblies of and legislative council of all the state and the union territories. The election of the president is thus indirect, as it is done by representative elected by the people rather than the people themselves. Eligibility. To be eligible to the office of the president, a candidate must be not less than 35 years ago age and qualified to become a member of Lok Sabha. Term. The President of India is elected for a term of 5 years. Year unless removed earlier by the Parliament for violating the Constitution. This process by which the President is removed from office is called impeachment. Powers of the President. Legislative power. The President has the power to summon either or both House for a session, nominate member to the Parliament, prorogue a session of either or both Houses, address the first session of the Lok Sabha, dissolve the Lok Sabha, give or withhold assent to the bills passed by the Parliament. Executive power. The President is the head of the executive branch of the Union government. The executive power of the President include the power to appoint and remove the Prime Minister, the power to appoint and remove the Minister from the Council of Ministers on the advice of the Prime Minister, appointing the state governor and member of the Election Commission. Judicial power. The President has the power to grant pardon to a person convicted of any offense, appoint to judges of the Supreme Court, High Court, and the Attorney General. Emergency power. The President has the power to declare a national emergency if the country's security is threatened by war, a state emergency if there is a breakdown of constitution machinery in any state, and a financial emergency when the financial stability of the country is threatened. Vice President. The Vice President is the presiding officer or the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. The Vice President officiates as the President in his or her absence. The Vice President may, on the advice of the Prime Minister, act as the President till a newly elected President assume power. जैसा कि हम चौथे चैप्टर में हैं सिविक्स के कक्षा क्लास 8 के द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सरकार का जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो मुख्यतः प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर बना हुआ है। प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्र और राज्य का हेड होता है और यहाँ तक कि वो कमांडर इन चीफ होता है भारतीय सशस्त्र सेना बल का। आर्टिकल 53 के तहत, संविधान के आर्टिकल 53 के तहत सभी
एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। इस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, जिसमें सम्मिलित होने वाले वे सदस्य होते हैं जो कि इस पार्लियामेंट के दोनों, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे, साथ ही साथ राज्यों के विधानसभा एंड विधान परिषद और यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेशों के भी सदस्य होंगे। और ये वहाँ से जो है इसको इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, जो कि लोगों के द्वारा दिए गए जो मंत्री जाते हैं उनको वो जाके चुनते हैं उनके वोट के बिहाफ पे। एलिजिबिलिटी, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो ऑफिस में उनका उम्र जो है कम से कम 35 साल, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही हो तो ठीक है। और साथ ही साथ वह कम से कम मेंबर ऑफ लोकसभा होगा। कार्यकाल टर्म, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है 5 वर्षों के लिए। उससे पहले भी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है अगर ये प्रतीत होता हो कि उसने संविधान का अवमानना या फिर उसका उल्लंघन किया हो। और इसको हटाने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग इम्पीचमेंट भी कहते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास यह लेजिस्लेटिव शक्तियाँ होती हैं जिसमें वो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस को वो किसी अधिवेशन के लिए, सेशन के लिए बुला सकता है। पार्लियामेंट में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कभी भी संसद को वह रोक सकता है। और लोकसभा का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें सबसे पहला स्पीच जो है प्रेसिडेंट का ही होता है। वह लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी बिल और अधिनियम को पास भी कर सकता है या अपने पास रोक भी सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव शक्तियों का वो हेड होता है। और केंद्र शासित सरकार में प्रेसिडेंट की मुख्य रूप से कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। उसका पावर्स ये है कि वो किसी को चुन सकता है, वो हटा सकता है प्रधानमंत्री के पद से, वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों को हटा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार। और यहाँ तक कि वो राज्यों के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का भी चुनाव प्रेसिडेंट कर सकता है। जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट के पास कुछ विशेष प्रकार की जुडिशियल पावर भी हैं। वो किसी अपराधी को क्षमा भी कर सकता है, उसके सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। वह जजेस को मनोनीत करता है, चुनता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी पावर यह होती है कि जब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल हो तब वो पूरे देश में जहाँ पे आंतरिक सुरक्षा की धमकी हो या बाह्य हमला से कुछ सुरक्षा की धमकी हो तो वो राष्ट्र पे अंतर्राष्ट्रीय ये इमरजेंसी लगा सकता है और किसी भी सरकार को तोड़ सकता है, व ब्रेक डाउन लगा सकता है। वो संवैधानिक मशीनरी को भी रोक सकता है, यहाँ तक कि जितने भी मानवाधिकार हैं उन सबको अपने हाथ में ले सकता है। यहाँ तक कि वो सारे फैसले वही ले सकता है जैसे वित्तीय फैसले, और देश को चलाने में या देश को तब तक वो अपने अनुसार चलाएगा जब तक कि देश में सुदृढ़ता या स्थिरता ना आए। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है जो कि प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति या एब्सेंट में काम करता है। वह राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है और वहीं पे वह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर सकता है जब तक कि कोई नए प्रेसिडेंट चुनकर ना आ जाए।